My mother was born and brought up in Burma. And she was born in Mandalay. She grew up in Mandalay. She went to the GC convent there. The family had to flee Burma during the Second World War when the Japanese invasion of Burma happened in 1941 during the Second World War. When the bombardments started and they tried to hold on as much as they could. Finally, when they were told to leave because it was the Burmese students in Rangoon University that were being pulled up and brought into the torture chambers. That's when the Indian people were given a kind of a warning, leave or you will be part of this. So the Indian families decided that whatever the route, whatever the means, we have to leave home, we have to get away from here. They walked across the Assam hills, they literally walked for months together, and my Nani, that story called Little Woman and the Gramophone is from my Nani's chapter where she said, I will leave everything else behind, but I'm not going to leave my gramophone. So it's a gramophone she carried on her back, and she said, I'm not leaving this. So the story is about her grit. As of course the box was thrown away, it was torn apart and thrown away. They said, okay, machinery le jao, ye kar lo, and then she carried 100 records with her. But everybody convinced her that we can't make it. We just want to get there alive. So jaan bachani hai, that is more important than your 100 records of Jutika Roy, Kanan Bala, K.L. Sehgal. Ye sab, let it go, mummy, let it go. And the story that I heard all my life as a child was how she stood over the precipice of the hill in those, Nagaland, Assam, jahan se bhi guzar rahe the, Tammu Pass, the valley, and ek karke she kept on reading, ek karke she kept throwing the records down the hillside and kept crying like a child. So those stories, the story of how they had to keep the animals away at night. I mean, it was the jungles they were passing through. और रात को आग जलाते थे ताकि the wild animals are kept at bay. So मशाले जलाते थे. तो धीरे-धीरे वो जो मशाले, मतलब कपड़ा खत्म हो गया मशालों के लिए जो पहना हुआ था वो रह गया. My Nani was carrying, because there were 4 daughters to be married. So she had been collecting dowry, sarees and होता है ना, तो अपनी बेटियों के लिए डावरी इकट्ठी करके वो जो लेके आए थे सब, धीरे धीरे जब कपड़ा खत्म हुआ तो ये जो ट्रूसो साड़ीज़ थी वो निकलनी शुरू हुई. तो एक करके वो जो ट्रूसो साड़ीज़ थी, दोस बनारसी सिल्क्स एंड दोस पारसी बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग, दे गॉट लकड़ी का जो मशाल था उसके ऊपर लपेट के आ गए. I mean, these are the stories that used to fascinate me as a child. So this is where my memoir begins. Stories from my grandparents' time. दादा दादी पार्टीशन, उनका ये पार्टीशन का रहा. मामा के साइड पे Japanese invasion of Burma रहा. So all those stories, and I think that if it wasn't for all these stories that one heard, हर family में होती है ना, हर एक के family में stories हैं. I feel that I'm kind of sum total of all the stories that I heard during my childhood that sensitized me to life, to living itself, and that is why I am probably the actor that I am. This is my 4th book, and whether it's a poem or how you translate these experiences into a role which he knows, how we try and, without maybe not consciously, but we draw from everything that we have been fed with. वहाँ से कहीं ना कहीं से, from that emotional reservoir you draw, and then you use it knowing unknowingly in your work. Yes. Yeah. Now we are going to open the forum for the audience. Wonderful to have come here.
because you know they're your fan, and you have this chemistry with Farooq Saab. And on-screen chemistry, and then you know I watched your show like a little child, and this was on infidelity, and you were in love with the woman who made you, and then you fall in love with your own model, your own creation. Astar. Yeah, Astar. So how do you churn out love? Something as you know believable as love through the lens and make us believe, because you know it is so hard, isn't it? You know, क्योंकि मैं मतलब मुझे एक्टिंग का क्राफ्ट मैंने when the camera goes on, that is when you have to be totally honest, totally real. उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, जब कट हो गया तो but between that action and cut, that is when you are living the real emotion which the scene is supposed to depict. For that moment between the action and cut, I'm in love with whoever eyes I'm looking into. I mean, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी लव स्टोरीज नहीं की हैं, ज़्यादातर थोड़े से इंटरनली स्ट्रॉन्ग क्वाइटर रोल्स वैसे किए हैं. ये शायद बताएंगे आपको ज़्यादा, लेकिन बताएंगे, लेकिन कोई भी इमोशन हो, नॉट जस्ट लव, कोई भी इमोशन, it just comes alive for me when the camera is on. I'm living that with all honesty at that moment. I'm a very bad mimic. I cannot mime anything. मेरे लिए वो रियल है. मुझे ऐसे लगता है कि आई एम द काइंड ऑफ एक्टर जिसमें कैमरा जब होता है तो वो रियल है, बाकी की जो ज़िंदगी है वो मेरे लिए एक रिहर्सल है, क्योंकि मुझे जो डिपिक्ट करना है वो तब करूँगी जब कैमरा ऑन होगा और कट होने के बीच का जो टाइम मुझे मिलेगा, दैट विल बी द रियलिटी फॉर मी. तो हर एक का एक्टर का अलग अलग. अब जो ट्रेन्ड एक्टर्स हैं वो बहुत शाने होते हैं उनको सब पता है कब कैसे इमोशन को कैसे चर्न आउट करना है, वो बताएंगे. ट्रेन्ड एक्टर से मुराद मैं थिएटर कहाँ? अच्छा सॉरी, ये मेरी कैटेगरी. और नहीं तो क्या, मुझे एक दिन 2 प्ले करने के बाद एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने शीशे में देखा, मुझे लगा गुरु बम्बई इंतजार कर रहा, तुम यहाँ नहीं पहुंचा. मैं निकल गया और उसके ऊपर से मतलब मेरे हिस्से का थिएटर मेरे पिताजी कर चुके थे. मुझे लगा देखो खानदान में एक ही आदमी थिएटर करे तो अच्छा है. सो जहाँ आपने जो सवाल पूछा है, फ्रैंकली बहुत अलग अलग इसके जवाब हो सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि प्यार दिखाने के लिए आपको प्यार में पड़ा होना ही ज़रूरी नहीं है. आप को किसी से प्यार होता है और आप अपने प्यार का इजहार करते हैं. फ्रैंकली मैंने तो ये पाया है कि व्हेन यू आर रियली इन लव विद समबडी, तो वो जो प्यार भरी बातें जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, वो बातें करते हुए आपको खुद से शर्म आने लगती है कि यार क्या बोल रहा हूँ मैं. बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन आई एम समबडी हु वुड नॉट रियली एक्सप्रेस मच. आई वुड रादर प्ले विद साइलेंसेस. मेरे ख्याल से कभी कभी एक साथ एक जगह पे एक क्या कहूँ, एक बेसिकली एक हाँ एक जगह पे बैठना, एक जो वाइब्रेशन होती है उसको एक साथ महसूस करना, वही आपके लिए कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर तरीका होता है. बट व्हेन यू ऑब्वियसली आर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, देन अ लॉट चेंजेस. क्योंकि आप अगर कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो तो कैमरा भी यहीं पे, एक थर्मोकोल आप दोनों के बीच में हो सकता है, लाइट जो है वो यहाँ से चमक रही होती. बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि साथ साथ में काम कर रहे होते हैं. 40 लोग आपके ऊपर फोकस. हाँ 40 पीपल अराउंड. और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आई लव यू बोलने में वो यार वो थोड़ा लेट हो गया, एक बार दोबारा करते हैं. सो यू नो ऑल दोज थिंग्स हैपन. लेकिन एज शी सेड, एक तो
हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फिल्म्स की चॉइस। हाँ, choice. गदर मैंने भी नहीं देखी, पठान मैंने भी नहीं देखी, तो जो फिल्में हम लोग नहीं देखते उनकी तो चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि मिमिक मैं भी बहुत बुरा हूँ, तो इसलिए जो आप कर रहे हो ना उसको आप जितने ईमानदारी के साथ कर सको वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी भी कैरेक्टर को बनाते हुए हो सकता है कि उसमें जो है ना हर कैरेक्टर आपका एक अलग बॉडी के साथ आता है, आप अपनी स्पीच बदल लेते हो, आप अपना चलने का ढंग बदल लेते हो, सब कुछ बदल लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग तो वही है ना जो कि सब कुछ गवर्न कर रहा है। सो वो ऑनेस्ट रहना जो है वो बहुत हेल्प करता है इस तरीके से, बिकॉज अगर आपको जो है प्यार दिखाना है, और दीप्ति जी ने तो बोला कि उस समय मैं उस आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ, आई एम इन लव फॉर दैट मोमेंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपने को एक्टर को उतना पसंद करते नहीं है, लेकिन आपको फिर भी रोमांटिक सीन करना है। जब लंबे शोज चलते हैं, You draw from your पर्सनल लाइफ से आप फिर सिर्फ चेहरा बदला होता है सामने, but your emotion is you're drawing from something that you truly felt. और कई बाज़ औक़ात ये जो इमेजिनेशन का कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हाँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस में। हाँ, you say. सो वही चीज़ जस्ट आधी बात आपने कह दी थी, मेरा काम आसान हो गया, लेकिन उसको बिलीवेबल बनाने के लिए खुद कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार मतलब ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट बहुत बुरी होती है, आपको मतलब को एक्टर और आप दोनों अपना जो है सर पकड़ के बैठे हुए कि यार ये चीज़ें आप बोल कैसे सकते हो, आप उसमें फिर चेंजेस करना शुरू करते हो, आप उसको उस सतह पर लेकर आते हो जहाँ पर कि आप खुद को कन्विंस कर पाओ कि हाँ ये कहा जा सकता है, ये बोला जा सकता है। जैसे हम एक शो मैंने किया था, उसमें राइटर को बड़ा कमाल ये था, वो थर्ड पर्सन में लिखता था कि आज वरुण दीप्ति को ये बताना चाहता है। अबे सामने बैठे हो, नाम लेके बात करो, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, नहीं दोनों के दोनों, मतलब वैसे तो इट यूज्ड टू गेट वेरी डिफिकल्ट, दैट्स अ रियली टफ वन। तो बहुत सारे होते हैं वर्टिकल्स जो आपको जो है दरकिनार करने होते हैं, लेकिन कन्विक्शन और खुद ऑनेस्टी और साथ में खुद को अगर आपने ढंग से एक बार कन्विंस कर लिया तो फिर उसके बाद प्रॉब्ली हम लोग इतना कर चुके हैं तो शायद इतना मुश्किल लगता नहीं है। मुश्किल है इनिशियली, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है, शायद हो जाता है।